Hi everyone, I hope all of you are doing fine. So let's continue today's lecture. Today we are going to learn about operating system modes. So basically there are two modes in operating system. First one is user mode, or we can say non-privileged mode, and second one is system or kernel mode and privileged mode. How you will find out that in which particular mode your operating system is operating on. So if operating system is operating in user mode, then the mode bit will be set to 1, and if it is executing in kernel or system mode, then the mode bit will be set to 0. Now there are certain regions that there are two modes are given. Now operating system decide in which mode it will execute any instruction. Whenever an instruction comes to the CPU, it is decision of operating system in which mode this instruction will be executed. Now you will be thinking that in which mode operating system execute. Operating system execute only in kernel mode or system mode. Now, why these modes are required? Because there are several type of instruction which we execute on an operating system. First one is privileged instruction. Privileged instruction means we are discussing about now system or kernel instruction. Privileged instruction are IO operation. Suppose we have to do any input output operation, it will be executed in kernel mode. Context switching is a very important concept, and we will discuss about it in very details. Basically context switching is when job 1 was executing and job 2 wants to execute, then the time lapse between the job 1 and job 2 switching and saving the job 1 context and loading the job 2 context in the CPU is called as context switching. We will discuss about it later in details. Next instruction is interrupt disabling. Interrupt means किसी भी टाइप का एक इंटरप्ट जो आपका CPU एग्जीक्यूशन को डिरेल कर दे. नेक्स्ट इज सेटिंग टाइम क्लॉक. आपका जो सिस्टम है उसकी टाइम क्लॉक होती है, उसको अगर आपने सेट करना है, टाइम चेंज करना है, तो दिस फॉल्स अंडर प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन. Next one is semaphore instruction. Semaphore is a very important concept in operating system, and we will be going to discuss in very details. Now let's come to the non-privileged instruction. Non-privileged instruction falls under user mode. यूज़र क्या करता है, प्रोसेसर का स्टेटस को चेक कर सकता है, टाइम रीड कर सकता है या चेक कर सकता है और फाइनल आउटपुट भेज सकता है कि प्रिंटर को. अब प्रिंटर डज नॉट फॉल अंडर प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन. प्रिंटर ऑपरेट करता है प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन के. इसने क्या बोला है कि फाइनल प्रिंट सेंड करता है, प्रिंट नहीं करता है. प्रिंट करेगा प्रिंटर एंड वो करेगा प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन के अंडर ही. Now I hope these two modes are clear to you. There are several reasons that these modes are given. One, we can say that operating system wants to protect your system from any kind of unauthorized access. Now let's move to the process part. Next topic is process management. Now you have heard about program and process. What is प्रोग्राम? प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस है? बेसिक प्रोग्राम क्या होता है, जब आपने एक प्रोग्राम राइट डाउन कर दिया है एंड इट इज़ स्टोर्ड इन द मेमोरी. मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है. प्रोसेस क्या करता है, ये मेमोरी के अंदर स्टोर्ड था, हम इसको लेके आए मेन मेमोरी के अंदर एंड देन वी विल एग्जीक्यूट इट ऑन द CPU. सो आई होप द डिफरेंसेस विल बी क्लियर. प्रोग्राम क्या है, मेन मेमोरी के अंदर स्टोर्ड नहीं है, ये स्टोर्ड है आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर. सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ये स्टोर्ड है एंड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है. CPU के अंदर ये नहीं है.
ऑन द अदर हैंड प्रोसेस क्या है, मेन मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है और ये एग्जीक्यूट कर रहा है आपका सीपीयू के अंदर। सो यही डेफिनेशन लिखी है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोग्राम क्या है, स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी नॉट एग्जीक्यूटिंग, एंड प्रोसेस क्या है, ये एग्जीक्यूट करता है और स्टोर होता है आपका मेन मेमोरी के अंदर और सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट करता है। नाउ प्रोसेस के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं प्रोसेस के। फर्स्ट वन इज़ प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी क्या है, जब आपका प्रोसेस क्रिएट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक यूनिक आईडी देता है टू आइडेंटिफाई दिस प्रोसेस इन कमिंग फ्यूचर। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट का मतलब है कि अब जो आपका प्रोसेस है वो किस स्टेट के अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर है। इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। सो होल्ड ऑन। करंट स्टेट इन्फॉर्मेशन को ये कंटेन करता है, जैसे रनिंग है, वेटिंग है या न्यू है, क्या है। नेक्स्ट आपका पार्ट है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या है, इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी मान के चलो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो रही है, तो जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी सीपीयू ने फेच कर ली है और वो आपका स्टोर्ड है इनटू द प्रोग्राम काउंटर के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ प्रायोरिटी। अब हमें पता है कि हर जॉब की एक प्रायोरिटी होती है। कुछ जॉब्स इम्पोर्टेंट होती हैं और कुछ जॉब्स अनइम्पोर्टेंट होती हैं। जो इम्पोर्टेंट जॉब्स हैं उनको हम हायर प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी मीन्स पैरामीटर असाइंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एट द प्रोसेस क्रिएशन टाइम। जब आपका प्रोसेस क्रिएट हुआ था तो उसको एक प्रायोरिटी भी दी गई थी टू आइडेंटिफाई इट इज़ इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी और जो नॉन इम्पोर्टेंट होगी उनको हम क्यू के अंदर रखेंगे और 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद है आपका जनरल पर्पज़ रजिस्टर। हमें पता है कि जब भी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करती है तो उसका डेटा स्टोर होता है, तो उसके लिए हम कुछ रजिस्टर यूज़ करते हैं जिनको हमने नाम दे दिया है जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स। उसके बाद है आपका लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी तो कुछ ना कुछ वो रीड या राइट कर रही होगी, तो उसके लिए कुछ फाइल्स चाहिए होंगी जो हमने लिखा है कि लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स है। जो जो आपने फाइल्स ओपन कर रखी हैं, दीज फॉल्स अंडर लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। नेक्स्ट वन इज़ लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस। किसी प्रोसेस को कौन कौन से डिवाइसेस चाहिए, मान के चलो आपको प्रिंटर चाहिए, आपको स्पीकर चाहिए, तो दीज फॉल्स अंडर द रिक्वायर्ड डिवाइसेस ऑफ अ प्रोसेस। तो ये स्टोर होती हैं आपका लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस बाय अ प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन। प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन। प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या है, आपने कोई पासवर्ड लगाया है, वो सारी चीज़ें स्टोर करती हैं आपका प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन के अंदर। सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट क्या है, ये आपका एक प्रोसेस का फ्लो है। सबसे पहले क्या होता है, आपका एक प्रोसेस क्रिएट होता है। मान के चलिए प्रोसेस आपने क्रिएट किया, अब ये आया न्यू के अंदर। अभी ये सीपीयू के अंदर नहीं है, ये रिसाइडिंग इनटू द सेकेंडरी मेमोरी। अब ये क्या करता है, ये रेडी क्यू के अंदर चला जाता है। रिमेंबर, रेडी है इसका मतलब है कि एक क्यू है जिसके अंदर आपकी जॉब्स वेट कर रही हैं ताकि उनका नंबर आए और वो सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट कर पाएँ। रेडी क्यू के अंदर वेट कर रहे हो तो आपका टर्न आया, डिस्पैच हुए आप सीपीयू के लिए। अब डिस्पैच करता है आपका डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या करता है, जब भी आपका टर्न आएगा आपको मेन मेमोरी से उठा के सीपीयू के अंदर प्लेस ऑन कर देगा और आप एग्जीक्यूट करोगे। अब इस केस में 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया और आप टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जॉब आएगी, वो एग्जीक्यूट करेगी। अब क्या हो सकता है कि उसको कुछ आईओ परफॉर्म करवाना था, कुछ इनपुट आउटपुट परफॉर्म करवाना था, तो उसने क्या किया, आईओ रिक्वेस्ट किया और वो क्या कर रहा है, अब आईओ परफॉर्म करवा रहा है और तब तक आपका सीपीयू आइडल है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जॉब को उठाएंगे और सीपीयू के अंदर प्लेस कर देंगे। अब जो ये जॉब आया था जो इनपुट आउटपुट करवा रहा था, मान के चलो इसने इनपुट आउटपुट अपना कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम अब इनपुट आउटपुट इसने कंप्लीट तो कर लिया है, अब इसको वापस सीपीयू के अंदर ले जाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं इसको दोबारा। ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। ये क्या करेगा, जब भी इसने इनपुट आउटपुट कंप्लीट किया तो ये आईओ कंप्लीट करने के बाद दोबारा रेडी क्यू के अंदर चला जाएगा। अब ये वेट करेगा कि कब इसका दोबारा टर्न आएगा। ये है आपका एक सिंपल प्रोसेस का फ्लो। अब कुछ ऐड ऑन करके मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए आपके पास
मेमोरी है जिसके अंदर आप 10 जॉब्स स्टोर कर सकते हो, बट ड्यू टू सम रीज़न आपके पास 20 जॉब्स आ गई हैं, आपके पास 20 जॉब्स आ गई हैं। अब आपके पास स्टोरेज जो थी वो सिर्फ 10 जॉब्स के लिए थी, लेकिन जॉब 20 है, तो आपने क्या किया, ड्यू टू स्टोरेज, लैक ऑफ स्टोरेज, आपने क्या किया, कुछ जॉब्स को स्टोर करवा दिया सस्पेंडेड रेडी के अंदर। अब ये कैसा पता चलेगा कि किसको सस्पेंडेड रेडी के अंदर रखना है और किसको रेडी के अंदर रखना है? यहाँ काम आता है आपका प्रायोरिटी। हम देखेंगे कि किस जॉब की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, उसको हम रेडी क्यू के अंदर रखेंगे, और जिन जॉब्स की प्रायोरिटी कम होगी उनको हम ले आएंगे सस्पेंडेड रेडी के अंदर। अब जैसे ही आपका मेन मेमोरी के अंदर स्पेस फ्री होगा, वी विल ब्रिंग दीज सस्पेंडेड प्रोसेस टू द रेडी प्रोसेस, रेडी क्यू। क्लियर? अब एक बार आप यहाँ भी देखो, रनिंग से आप वेटिंग के अंदर आए थे, आपने कुछ आईओ परफॉर्म करवाया था, मान के चलो अब स्टोरेज इशू हो गए हैं, आपके पास मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रोसेस को उठाएंगे और सस्पेंडेड वेट के अंदर ले आएंगे। अब जब तक आपके पास मेन मेमोरी के अंदर स्पेस फ्री नहीं होगा, तब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर प्रोसेस को स्टोर करोगे और वेट करो स्पेस फ्री हो और आप दोबारा रेडी के अंदर जाएं। अब ये क्या करेगा, जैसे ही स्पेस फ्री हुआ आप दोबारा से वेट के अंदर गए और आप आईओ कंप्लीट कर लिया था, तो आप रेडी के अंदर चले गए। मान के चलिए अब स्पेस फ्री नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, तो आप क्या करोगे, इन सस्पेंडेड वेट को भी आप उठा के सस्पेंडेड रेडी के अंदर ले आओगे, क्योंकि आप रेडी के अंदर तो जा नहीं पा रहे हो। अब आपने आईओ तो कंप्लीट कर ही लिया था, आपने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम वेट किया, उसके बाद अब या तो आप रेडी के अंदर जाते या आप सस्पेंडेड रेडी के अंदर आ गया। अब जैसे ही मेमोरी फ्री होगी आप दोबारा से रेडी के अंदर आ जाओगे और आप एग्जीक्यूट करोगे। अब इस पूरे डायग्राम के अंदर 3 चीज़ें और बची हैं कि आप सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे थे, आप आईओ के पास आए। अब एक एरो और है कि आप रनिंग से रेडी के अंदर वापस फोर्सफुली आए हो, आप एग्जीक्यूट कर रहे थे लेकिन आपको दोबारा रेडी के अंदर ले आया गया। अब ये क्यों हुआ, या तो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी मीन्स एक हाई प्रायोरिटी जॉब आ गई थी जिसको एग्जीक्यूट करवाना था, इसलिए लो प्रायोरिटी वाली जॉब को एग्जम्प्ट करके दोबारा रेडी क्यू के अंदर लाया गया और हाई प्रायोरिटी वाली जॉब को एग्जीक्यूट करवाया गया। या क्या हो सकता है, टाइम क्वांटम हो सकता है, जो हमने पढ़ा था आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या था कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है हर एक पार्टिकुलर जॉब को टू एग्जीक्यूट। जैसे ही आपका टाइम क्वांटम पूरा होगा, आपसे सीपीयू ले लिया जाएगा और आपको रेडी क्यू के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा। आई होप दिस वन इज़ क्लियर।